Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. होते like you're not supposed to look at the mentor, you're supposed to talk to each other, address everyone. Make sure that you actually keep in mind all these things because they're taken into consideration. कल strategy सोचना पड़ता है कि अगर ये problem है तो तुम क्या इसका solution निकालते? For example, if it's food shortage, particular thing, just be sure and जो आता है बोल दो कि मुझे लगता है ये है. Obviously, they'll appreciate that. Hi everyone, welcome on board. We've got Vani Gupta sitting in here. Hi Vani, welcome on board. Hello Rahul sir, how are you? Very good, very good. बस लॉकडाउन एंजॉय कर रहे हैं. ये YouTube पे वीडियो पता नहीं कब जाएगा, बट काम बहुत बढ़ गया है लॉकडाउन में. तेरी इंटर्नशिप शुरू हुई कि नहीं अभी तक? मेरी इंटर्नशिप बस अभी शुरू होने वाली है फाइनली. अच्छा, गुड. तो फ्राइडे से ऑनबोर्डिंग हो जाएगी, वर्चुअल ऑनबोर्डिंग. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो आई वांट टू टेक यू बैक टू द मेमोरी लेन एंड हम लोग रियल ह्यूमंस ऑफ बी स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं. दिस इज द पार्ट 3 ऑफ द सेम. I want to know like how was your experience about your group discussion or personal interview? एनएम में तो CDPI होता है, right? Case discussion or personal interview. Tell me through the ups and downs in the interview. कैसा गया था? Was it in control? Was it not in control? कुछ happy moments, कुछ sad moments क्या था? Share your story on that, please. So first thing is कि हम लोगों का case discussion round होता है. So wherein you are given a case, situation based. And जो भी hygiene factors होते हैं, like you're not supposed to look at the mentor, you're supposed to talk to each other, address everyone. Make sure that you actually keep in mind all these things because they're taken into consideration evaluation के time पे. उसके बाद केस तुमको normally 5 minutes के लिए दिया जाता है. हम लोग पढ़ते हैं, strategy बनाते हैं, and then someone just starts giving a brief idea about the case. So the thing is कि इसमें 2 or 3 are the decent entries. And it's better if you do not just keep on interrupting anyone because it tends to show कि तुम दूसरों के ideas को value नहीं करते हो. And try to bring a different point of view every time. तो normally क्या होता है कि लोग इतना ज़्यादा बात करने लग जाते हैं, एक दूसरे की बात काटने लग जाते हैं, so it actually becomes a chaos, a fish market. And पूरा group scrap हो जाता है. तो प्लीज में ये बहुत ध्यान रखना होता है कि बिल्कुल भी फिश मार्केट नहीं बनानी होती है. 10 मिनट्स का टाइम मिलता है, सफिशिएंट टाइम. नॉर्मली 8 से 10 लोग ही होते हैं ग्रुप में. तो अगर तुम 30 सेकंड्स का भी एक पॉइंट बोल दोगे 2-3 बार, इट्स फेयर इनफ. एंड ट्राई नॉट टू रिपीट द पॉइंट्स ऑब्वियसली. एंड जो केस होता है इट्स वेरी नॉर्मल. ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी पे ध्यान देना होता है. इट्स नॉर्मल, इट्स जनरल. इसमें बस लॉजिकली स्ट्रैटेजी सोचना पड़ता है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो तुम क्या इसका सोल्यूशन निकालते. फॉर एग्जांपल इफ इट्स फूड शॉर्टेज तो तुम कैसे ऑप्टिमाइज करोगे. इट्स नॉट जस्ट लाइक यू आर गोइंग टू बी अ मैनेजर. तो थोड़ा स्ट्रैटेजिकली कॉस्ट इफेक्टिव वे में कि अच्छा एज अ पार्ट ऑफ अ कंपनी तुम्हारा कॉस्ट भी ना बढ़े, तुम वो भी कर लो. तो यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल दीज थिंग. एंड उसके बाद हमारा इंटरव्यू होता है. सो इंटरव्यू में द थिंग इज it's how you drive the interview, like basic hygiene questions, why MBA, why you are here, why NMIMS, या फिर तुम्हारे जो बैकग्राउंड होता है. जैसे मैं कॉमर्स की थी तो मुझसे बीकॉम के क्वेश्चंस पूछे गए. मेरा वर्क एक्स था तो वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस. एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप इन माइंड द करंट अफेयर्स. the moment they see that you are uncomfortable with a particular question or they find out कि तुम इस particular area में weak हो, they might grill you on that. But you have to put on your confidence. Like even if you think that you do not know a particular thing, just be sure and जो आता है बोल दो कि मुझे लगता है ये है. Obviously they'll appreciate that. झूठ तो नहीं बोलना, झूठ तो नहीं बोलना, नहीं भी आता. हाँ जी हाँ जी हाँ जी.
हाँ, ऐसे कुछ भी बोल के नहीं ये यही आंसर है, नहीं नहीं मुझे पक्का पता है, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो फैकल्टी है, दे नो बेटर देन मी। They know better than you. तो जैसे मेरे केस में उन्होंने मुझसे करंट अफेयर्स पूछा, अच्छा. अब उसी के बेस पे उन्होंने एक दो क्वेश्चंस और पूछे, जस्ट टू मेक श्योर कि मुझे ऊपर ऊपर से नहीं पता न्यूज, मुझे थोड़ा सा आइडिया है। Do you remember? अब आई Do you मे remember और the मे news? नॉट बी क्या रॉन्ग। था? It was something related to NBFC. I'm not sure. So अच्छा. like they कुछ न्यूज NBFC की थी, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा उसकी फंडिंग कहाँ से होती है, ऐसे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन कि तुमको पता है या नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बस हेडलाइन पढ़कर आ गए हो। तू पढ़ती थी मतलब पेपर वेपर न्यूज़पेपर वगैरह? Are you regular with the papers? यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटरव्यू से पहले स्पेशली कि तुम लोग करंट अफेयर्स पढ़ो, एंड अगर तुम फाइनेंस के हो तो थोड़ा सा इको या क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, मार्केट में, बहुत डिटेल में नहीं, बट एक फेयर आइडिया होना चाहिए, सो दैट यू डोंट लुक डम कि तुमको भाई पता ही नहीं है, मैनेजमेंट करना आएगा, तुमको ये सब भी नहीं पता है। ऑल्सो ऐसा नहीं है कि तुमने अच्छा 2 साल पहले ग्रेजुएशन कर ली तो तुमसे ग्रेजुएशन का क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। एंड मेरे केस में हाइजीन क्वेश्चंस पूछे गए थे काफी कि एमबीए क्यों, दे गेव मी सिचुएशन कि अगर कंपनी में ऐसा हो रहा होता है, इट वाज लाइक एथिकल डिलेमा, Oh. तो ये सब भी आना चाहिए। एंड द वन थिंग इज व्हाई एमबीए वाला क्वेश्चन तो अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज इफ दे सी दैट यू आर नॉट क्लियर विद योर गोल्स, तो चाहे तुम्हारा बाकी चीज कितना भी अच्छा गया है, देयर आर हाई चांसेस कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। That's तो true. व्हाई एमबीए और ऐसे जो हाइजीन क्वेश्चंस होते हैं, इन सब की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू शुड बी एबल टू कन्विंस देम कि हाँ यू फिट परफेक्ट इन दैट करिकुलम। Right, right. People are not able to understand that. ये पता नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आता है whenever I meet students. I've been in the panel of couple of good business schools. I don't want to name them, but very close to my heart. But I hate it. यार ये दो सवाल तेरे को मुझे पूछने ही पूछने हैं. First is tell me something about yourself, which is like any person who is overpowering you, तो वो आपको ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, यू नो। अगर आप शादी.com की डेट पे भी जा रहे हो तो अदर गाइज गोना आस्क यू लाइक अच्छा अपने बारे में बताइए, है ना। तो wherever this person is like trying to get into a relationship with you or trying to get you inside or giving you a job as such, और इवन नौकर भी आपको हायर करना है, आप ये क्वेश्चन पूछोगे यार कि भाई अपने बारे में बताओ, कहाँ रहते हो भाई, क्या है, क्या गाँव कहाँ है तुम्हारा, ऑल दोज थिंग, एंड पीपल स्टिल डोंट प्रिपेयर, which I feel really bad. No, this is amazing. हाँ बोलो। आई फील मतलब ये चीज मैंने भी एक्सपीरियंस की थी। नॉर्मली क्या होता है कि पीपल दे ट्राई टू मेमोराइज दोज थिंग्स कि ये बोलूंगा ये बोलूंगा ये बोलूंगा। सो व्हाट आई डिड, आई ट्राई टू क्रिएट अ स्टोरी अराउंड इट कि अच्छा ठीक है, मैंने कॉलेज किया, मैंने कॉलेज में ये चीज क्यों करी, मैं इस सोसाइटी में क्यों गई थी। सो आई जस्ट ट्राई टू क्रिएट अ टाइमलाइन कि This is yes. so amazing. This is so amazing, Vani. Yaar, what are your parting thoughts to all these people who are listening to you? You've cracked it. You've nailed it. अंदर जाके भी तू छक्के मार रही है. And the real human session. What are the real tips to all these people? I would just say कि whatever you write in your SOP, especially or your CV, just be thorough with it, and you just have to prepare for a week or so. So just put in all of your efforts, क्योंकि तुम्हारी सिलेक्शन मेल के बाद तुमको हफ्ते के अंदर इंटरव्यू सेटअप हो जाता है, तो एक हफ्ते अच्छे से पढ़ लो, look for the current affairs, read your SOP, and just be clear in your thoughts, especially why MBA. That's and so amazing. you go through it. That's amazing. Thank you so much, Vani. May God bless you in all the endeavors. I really like you, man. And you're a great person, and I think you're gonna keep killing in life. Thank you so much, sir. Bye bye. Take care. See ya. Bye.